ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਏਮ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਵੈਨ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਜੋ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है, ਅਸੀਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾ ऑब्वियस इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर दी है कि आप कह लेते हैं कि इस साइड आपने पॉजिटिव चार्ज दिता हुआ और इस साइड आपने नेगेटिव चार्ज दिता हुआ और इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जांदियां ने और ये भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਪਲਸ ਕਿਊ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ 2L ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ और नेगेटिव टू पॉजिटिव साढ़े को किया जाए डायपोल मोमेंट, और मैं मान लेना कि दिस वन इज द पी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन और इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਪੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਟ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੰਸੀਡਰ electric dipole having charge कितना charge minus q and plus q separated by distance 2L। इन्नी ऐसी गल कर चुके। ठीक है, ओके प्लेस्ड कच रखा है इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जिन्ना मैग्नीट्यूड इलैक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट है उन्ना मैग्नीट्यूड इस जगह उसे सेम डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड हर पॉइंट होएगा और इसे करके ਇਹਦਾ ट्रांसलेटरी मोशन जीरो है। जो नॉन यूनिफॉर्म होगा ट्रांसलेटरी मोशन जीरो नहीं है, ला सकते। इन यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड सी यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड ईच रखता P वेक्टर इज इट्स इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, P वेक्टर की आर्टिकल इज इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, in this
इन्नी गल तो सानू पिछे पढ़ चुके हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल ते टॉर्क एक्ट करती है जी साढ़े कोल कहते एक तरह P क्रॉस E और क्रॉस प्रोडक्ट करते की होना साइन, ठीक है। ओके वेक्टर डाटा ओके इसमें फर्स्ट करिए हुण ये तो गल हो गई कि इन्हें टॉर्क एक्ट करती पई है और उसकी वैल्यू ए वाली होंगी है। हुण मैं फाइंड आउट की करना, मैं फाइंड आउट करना कि एनर्जी ये कितनी स्टोर हुई, जे मान लो कि मैं इसे एंगल से फाइंड आउट करता तो एनर्जी मैं पता करने के लिए की कह रहा कि टॉर्क कोशिश कर रहा है इधर को घुमाण, इस रोटेट करन के इस डायरेक्शन आपां टॉर्क के अगेंस्ट उन्होंने डिस्प्लेस करना, जे मतलब वो डायपोल इधर को घूम रहा तो आपां उन्होंने दूसरी डायरेक्शन घुमाना, मतलब कि इतने आप बना इस चीज़ कि मान लो कि एक डायपोल प्लस क्यू सी और दिस वन इज द माइनस क्यू, ठीक है। तो उसनों मैं रोटेट करना विद अ स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है, प्लस क्यू और इस पॉइंट माइनस, ओके। जो सीधा करना तो स्मॉल एंगुलर वर्क डन हो, ठीक है, वही जो वर्क डन आ वही इस डाइपोल एनर्जी से स्टोर करना, मतलब जो इस पॉइंट से है बिल्कुल कोई एनर्जी तो मैं इतने रोटेट करता था मतलब एनर्जी रोटेट जिन्नी मैं जिन्ना वर्क डन किया इसमें रोटेट कर लूँ उन्नी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी स्टोर। इसका मतलब जे मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ तो मैं वर्क डन करांगा, असं करांगे लेट अ स्मॉल वर्क डन टेक प्लेस इन displaced a dipole, electric dipole by small angle d theta against the torque। जी टॉर्क एक्ट करती है अगेंस्ट कर जी डिस्प्लेसमेंट करनी है डाइपोल की वो इसके अगेंस्ट होनी, ठीक है। दैन स्मॉल वर्क डन, इसका मतलब स्मॉल वर्क डन होया और वर्क डन असी की लिखांगे टॉर्क एंगुलर वर्क डन, इस करके स्मॉल वर्क डन की है कि कितनी टॉर्क लग रही है तो तुसी कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डी डब्ल्यू टॉर्क डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू साढ़े को है मेरा बेटा टॉर्क असीं कढ़ लिया पी ई साइन थीटा, इसका मतलब पी ई साइन थीटा डी थीटा, ओके। हुण असीं कहने कि स्मॉल वर्क डन होया, असीं कहने कि टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना कि किसी डाइपोल को डिस्प्लेस करना, फिर असीं इसलिए असीं कोई फिगर बनाउने हैं, ओके। मैं कहना कि साढ़े कोल एक डाइपोल सी कोई इस पोजीशन पे पिया प्लस के, ठीक है, और दिस वन इज द माइनस के और ये साढ़े कोल इस डायरेक्शन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन इलैक्ट्रिक फील्ड है और शुरू वाला एंगल साढ़े कोल कितना सेगा थीटा वन इलैक्ट्रिक फील्ड का। फिर आपां ने उसनूं घुमा आपां उसनूं रोटेट कीता अगेंस्ट द टॉर्क ते आपां नूं घुमा के इलैक्ट्रिक फील्ड घुमा के ते बाद वाला एंगल कितना कर दिता थीटा 2, मतलब इनिशियली एंगल थीटा 1 से बाद वाला कितना कर दिता थीटा 2 करता। देन वर्क डन it displaced a electric dipole by angle theta 1 to theta 1 to respect थीटा 2। ऑब्वियस है हुण जो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना ते एदी आपां ने की कर देनी है इंटीग्रेशन, इसका मतलब टोटल वर्क डन साडे को जाना। हुण असीं लैके कित्थों कित्थे कर आ रहे हैं थीटा 1 तो थीटा 2 तक, थीटा 1 सेगा उन्होंने घुमा के कित्थे कर लै गए आपां थीटा 2 तक लै रहे हैं, जी टॉर्क लग रही है अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हैं। और दैन मेरा बेटा साढ़े को है पी ई साइन थीटा डी थीटा, ओके। डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट आवा, अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आवा, इत्थे ना चाके बाहर रख और ये साढ़े को कितना आ जाना और ये वैल्यू साढ़े पास आ जानी है पी ई थीटा 1 to थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। नाउ
साइन थीटा दी इंटीग्रेशन सानू पता मेरा बेटा साइन थीटा दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा वन थीटा टू नेगेटिव बार पीई कॉस थीटा थीटा वन थीटा टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते आप अपर लिमिट करांगे तो साढ़े को बनेगा cos थीटा टू लोअर करांगे तो cos थीटा वन ठीक है नेगेटिव साइन विच मल्टीप्लाई कर देने तो बन जाना है पीई आ माइनस का हो जाना माइनस माइनस प्लस हो जाना इस करके cos थीटा वन आप आगे लिख लांगे और cos थीटा टू आप पीछे लिख लांगे ये साढ़े को साडा की बन गया वर्क डन की होंदा पीई cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू ओके नाउ वर्क डन के साडे कोल इथे इस तरीके ना कोई भी ओके दैट यही जेडी आही साडे कोल जेडी वर्क डन ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ टॉर्क ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹੀ पोटेंशियल नॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ स्टोर्ड हो जाएगी ओके that this work done is stored in the form of potential energy in electric dipole. Okay, this work done is stored in the form of the potential energy in the electric dipole. Electric dipole आ वाली potential energy stored होगी। इसका मतलब work done जेड़ा सी कीता potential energy दे रूप च आ गया, वो कितना आ गया Pe cos theta 1 minus cos theta 2। Okay, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ let initial theta 1 is 90 degree and थीटा 2 is थीटा मतलब शुरू च ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥੀਟੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ PE ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਥੀਟਾ 90 ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 0 ਮਾਈਨਸ cos थीटा that case negative bar minus PE cos थीटा ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਟੋਰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ એનર્ਜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ numerical portion of energy ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है ओके एक पोर्शन साडा कंप्लीट हो गया ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि साढ़े पास फर्स्ट कंडीशंस की है कि उन्होंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो आप पोटेंशियल एनर्जी कढ़ ली ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कढ़ ली पोटेंशियल एनर्जी क्या कि जिन्ना असी वर्क डन करांगे कि डायपोल दे विच अगेंस्ट द टॉर्क वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म दे विच डायपोल च स्टोर हो जाएगा तो उन्होंने समझने लिए आपने कहा कि एक इलैक्ट्रिक फील्ड लो यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड वो एक इलैक्ट्रिक डायपोल रखो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ठीक है तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो वाली वैल्यू टॉर्क करेगी ओके फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਡੀ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਟਾਰਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਣਾ ਸਮਾਲ ਟਾਰਕ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਗੂਲਰ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਥੀਟਾ 1 ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਥੀਟਾ 2 ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ फिर आप गए कि कितों कितने थीटा 1 टू थीटा 2 ओके वर्क डन इन डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल बाय एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 तो थीटा 1 इनिशियल से फिर थीटा 2 तक कर लगे हैं फिर आप इंटीग्रेशन कर देंगे कि बाहर काट लिया आपने sin थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा और दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की नेगेटिव बाहर काट के आपने फिर माइनस साइन ਵਿੱਚ मल्टीप्लाई कर लेने हैं ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮੋੜ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ कि this work done is मेरा stored in the form of the potential energy the electric dipole यही work done जेड़ा ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਸਟੋਰ ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ work is equal to energy q ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਫਿਰ let initially theta 1 ਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ थीटा 2 ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 और थीटा ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਬਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ, if J dipole is perpendicular to the electric field, J dipole perpendicular होवे electric field ਦੇ, electric field मतलब कि जे आ साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड है, ओके, सानू पता कि आह इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आ साडे कोल डाइपोल, कोई फर्क नहीं पड़ता तुसीं उत्ते की लै रहे हो, नीचे की चार्ज लै रहे हो, आ साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल डाइपोल दे विच जिहड़ा एंगल बनेगा कितना डिग्री, 90। इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टी है, ओके। देन जे इतना है, देन एंगल बिटवीन किहदे किहदे बिटवीन, एंगल बिटवीन P and E is 90 डिग्री होगा। देन एनर्जी मेन तो असीं एनर्जी कढ़नी तो साढ़े कोल एनर्जी की होगी, एनर्जी की है साढ़े कोल, वो हैगी है PE cos थीटा नेगेटिव, और असीं जे पुट करते हैं cos 90 डिग्री, दैन cos 90 0, तो साढ़े कोल एनर्जी कितनी हो गई, 0। ओके, मतलब ये कोल इस टाइम कोई एनर्जी नहीं है जी, ठीक है। सेकंड केस, इफ डाइपोल moment is same in direction to electric field, parallel या in same direction, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई साढ़े पास, और आज इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ओके। एक क्यों, क्योंकि मैंने पता इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलैक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इज कितना होएगा, 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देन एनर्जी उस कंडीशन ते जिहड़ी एनर्जी होएगी साडे पास, जिहड़ी एनर्जी यू आ वो की है माइनस PE cos थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, ओके। थीटा की वैल्यू साढ़े कोल की आ जाएगी माइनस PE cos 0, और cos 0 साढ़े कोल कितना आएगा माइनस PE, और एक 1 और 1 आ जाएगा तो एनर्जी कितनी आएगी माइनस PE, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं तीन गल्लां कि स्टेबल अनस्टेबल कितों रहेगा, किहड़ियां कंडीशनस आ दोनों वो स्टेबल और या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, ठीक है मेरा बेटा। तीसरी कंडीशन है सारे पास, इफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। डाइपोल मूवमेंट जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं उल्ट लावांगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड साढ़े पास, और उस डाइपोल रखना हमें पॉजिटिव के इधर रखना, नेगेटिव के इधर रखना, दूरी वो आप 2L लेने,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ठीक है, then angle between dipole moment and electric field is 180 180 डिग्री का एंगल होएगा। then एनर्जी साढ़े को की है u माइनस PE cos थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करांगे 180 cos 180 और माइनस PE cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस P। ओके, ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, 45 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ कि जे वो मेरा बेटा कितने डिग्री एंगल पे होवे सारे पास 0 डिग्री एंगल पे होवे, मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दा नेगेटिव। इसका मतलब इतनी एनर्जी की है मिनिमम। जो एनर्जी घट तो घट दा मतलब डाइपोल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ स्टेबल है। स्टेबल कितना है मेरा और इक्विलिब्रियम जारी गल याद रखना, क्योंकि नु देखो ये इधर पॉजिटिव चार्ज है सारे पास और इस साइड नेगेटिव चार्ज पे आ रहा है पॉजिटिव। हुन पॉजिटिव और नेगेटिव ने अपनी डायरेक्शन फोर्स नाल खिंची जाना, ठीक है, और इन इधर हम खिंची और ये इक्विलिब्रियम रहना कि दोनों फोर्सेस इक्वल होनी है, ऑपोजिट होनी है, सेम लाइन से एक्ट करनी है। तो इस करके एनर्जी मिनिमम है। और जे असं बोलिया कि एनर्जी मिनिमम है, मतलब वो स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी है, तो ठीक है ना मेरा बेटा। इन दिस डाइपोल इज स्टेबल, सी की लेना डाइपोल स्टेबल है। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ हैं कि इधर जे मैं पॉजिटिव लाना और इस डायरेक्शन जे मैं नेगेटिव लाना, तो मेरे पास ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। पर जब बिल्कुल इतनी पे आएगा तो फोर्स एकदम लगेगी, जब बिल्कुल इतना तो फोर्स एकदम लगेगी, ठीक है। इन्हों बड़ी चार्ज लगी घूम के सीधा हो गया, इस करके अनस्टेबल है, ठीक है। इसी करके ये एनर्जी भी मैक्सिमम है ये पढ़ो, बट फिर भी ये दोनों इक्वल आ, बिल्कुल ऑपोजिट है। एक आगे बेचा इक्विलिब्रियम दे बेच है, ठीक है। ओके, इन दिस डाइपोल इज अनस्टेबल। ओके, ये साढ़े पास ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ, ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सेम डायरेक्शन पे आएगा एनर्जी कितनी होगी, जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन डायपोल मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ते एनर्जी कितनी होगी। इस टॉपिक्स ਨੂੰ मेरा बड़ा लिख ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥਿਓਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।